پاور تھی 2002 سے لے کر 2008 تک ہمارا وزیر داخلہ تھا، ہمارا ناظم تھا، ہمارا گورنر تھا، منسٹر تھا. ایک واقعہ بتا دیں کہ کسی کی کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہو، لیکن یہ ٹارگٹ کلنگ آج جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جبھی یہ لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج دو پختونوں کو یہاں مار کر، پنجابیوں کو مار کر، بلوچوں کو مار کر جب آپ لاشیں بھیجتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرحد اسمبلی میں خیبر پختونخوا میں کراچی میں مارے جانے والے پختونوں کے لیے قرارداد مذمت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے اور وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. دو بلوچ مارے جاتے ہیں کراچی میں، بلوچستان اسمبلی میں قرارداد مذمت پیش ہوتی ہے اور وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. دو پنجابی مارے جاتے ہیں پنجاب اسمبلی میں قرارداد مذمت پیش ہوتی ہے اور وہاں پر اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ 15,500 اپنے شہداء کو لے کر ان کے خون کو کہاں جا کر میں قرارداد پیش کروں؟ کون سی اسمبلی میں میں قرارداد پیش کروں جا کے جہاں پر میں ان لوگوں کو لے کر جا سکوں؟ کسی پاکستان کے عدلیہ نے، کسی پاکستان کی اسمبلی میں اتنی جرت ہوئی آج تک کہ ان میں سے ایک بھی معصوم آدمی کے لواحقین سے مل کر جا کر اپنی اسمبلی میں بات کریں اور ان کے لیے بھی افسوس کریں؟ آج تک نہیں ہوا پاکستان میں، آج تک نہیں ہوا. دو لوگ مارے جاتے ہیں، ڈاکو مارے جاتے ہیں، اسمبلیوں میں قراردادیں پیش ہوتی ہیں. میں کدھر لے کر جاؤں ان 15,000 لوگوں کی قرارداد؟ ہماری قرارداد، ہم ان لاشوں کو کہاں لے کر جائیں؟ دو لاشیں کفن پیک کر کے آپ ادھر بیچتے ادھر بیچ دو. میرا بیٹا ہونڈا کمپنی میں جاب کرتا تھا. میرا بچہ کام پہ سے آتے ہوئے اس کو بخاری سے گٹنے کیا میرے بچے کو، اور اسے اتنا تشدد کر کے مارا، اتنا مارا ہے. اس کے بعد اس کو اتنا تشدد کر کے میرے بچے کو مارا. 2 سے 2.5 گھنٹہ میرا بیٹا روڈ پہ پڑا رہا. میرا بچہ اتنی دیر میں پڑا رہا اور مجھے پتہ نہیں چلا. میں نے FIR بھی کٹائی لیکن کچھ نہیں ہوا. سب یوں ہی گھوم رہے ہیں آزاد، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ان کو. میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے وہ لوگ. گورنمنٹ تو کسی کام کی نہیں ہے. کسی نے ایک دفعہ آ کے یہ نہیں پوچھا کہ اس گھر میں ایک کمانے والا تھا، اس کے گھر کا کیا حال ہے. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں مرتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو دیکھنے والا نہیں ہے. میرا بیٹا پورا گھر میرا چلاتا تھا. میرے شوہر کو فالج کاٹے ہوئے تھے. میرے بیٹے نے ان کو کام پر سے بٹھا دیا تھا کہ ابو آپ بیٹھ جاؤ، میں ہوں آپ کے لیے، ضرورت نہیں آپ کو کمانے کی. میرا بیٹا پورا گھر چلاتا تھا. میری 5 بیٹیاں ہیں اور ایک میرا چھوٹا بیٹا ہے 8 سال کا. میرا تو گھر کا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ کس کو مار رہے، کیسے مار رہے، کیوں مار رہے. میرے بچے کو مار دیا. میرے شوہر ابھی بھی کام نہیں کرتے، ابھی بھی کام نہیں ان کے پاس. ڈاکٹر نے منع کیا سختی سے ان کو کام کے لیے. ایک بھائی تھا اس میں لے لیا انہوں نے. یہ نہیں پوچھا ان کی بہنیں کتنا روئی گی، کتنا مریں گی ان کی بھائی بہن.
कटी पहाड़ी है, बनारस है, सब वो रोज का ही मामूल है। सन 86 में मेरा भाई शहीद हुआ और ग्रेनेड फेंका गया था बराबर से, मकसद पूरा घर तबाह हो गया था वो 86 में। आपकी उस वक्त उम्र क्या थी? मेरी भाई 12-13 साल थी। अभी मैं 2 बच्चे का बाप हूँ। आपके भाई ने आपके सामने जान दी? वहाँ बराबर में बैठे हुए थे, एक बैग ग्रेनेड आया घर के अंदर और पूरा घर ब्लास्ट हो गया था। तो कितने आपके घर वाले हैं? मैं 5 बहनें हैं और 3 भाई हैं। अभी 2 भाई हैं, एक मैं हूँ, एक बड़ा है। वो जो भाई शहीद हुआ उसकी उम्र क्या थी? वो मुझसे 2-3 साल बड़ा था, 3 साल मुझसे बड़ा था। आगे और आपने जमा भी कर लिया और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहां पर खड़े होकर पाकिस्तान के लोगों को बता रहे हैं जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है इस मुल्क का और इस कौम का, इस पाकिस्तानी कौम का, वो ये है कि आज इतनी सारी कुर्बानियों के बावजूद, आज हजारों लोगों के शोदा की पार्टी होने के बावजूद, आज भी टीवी खोलो तो सातों कोस दूर बैठकर कोई बहुत बड़ा फिलोसफर जो है वो यही फिलॉसफी बगाड़ रहा होता है कि ये तो चंद लोगों का टोला है, ये बदमाशों का टोला है, ये फलां है, ये फलां है, ये हर दूसरा आदमी जो है वो यही बात कर रहा होता है। पाकिस्तान के लोगों को ये वाकयात ना याद है, ना वो इसे याद करना और देखना काफी तो पता भी नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताएं, यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। ये देख के मुझे सिर्फ ये समझाएं कि MQM को ये क्यों कहा जाता है कि ये बोरीबंद लाशें देते हैं? इसलिए कि जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास ताकत है, अगर वो ये प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे या वो सच्चाई जाने देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। देखें, आज एक कंट्रोवर्शियल केस में आप देखते हैं कि उस लड़के की मूवी बनती है मारते हुए और वो डीजी रेंजर्स को, और सुप्रीम कोर्ट उस पर सो मोटो एक्शन लेती है, डीजी रेंजर्स को अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ता है, लोगों की पेशियां हो रही हैं। ऐसे हमारे पास ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आंखों पे पट्टियां बांध करके उनके अपने प्यारों के सामने से उनको लेकर गए और अगले दिन जो है वो उनको खड़ा करके लाइन में उनको जो है वो मार दिया गया। मेरा दामाद का मर्डर हुआ 94 में, दुकान पे बैठे हुए थे, कारकुन थे, उनको आके मार दिया था। फिर उसके बाद में 1 साल के बाद में उसके भाई को 4 नंबर के स्कूल ग्राउंड में मारा और बोरी में लाश करके इरम बेकरी के पास डाल दी। फिर 97 मेरे भतीजा नूर आलम खानों की पर्चियां दे रहा था तो उसको 4 नंबर पे मारा खिलके वालों ने। 3 गया, मेरी बच्ची जो बेवा है 3 साल से एक्सीडेंट हो गया, घर पे माजूर पड़ गई, ना चल सकती ना फिर सकती। इन लोगों ने बहुत साथ दिया है और अब तक देते चले आ रहे हैं। 6 महीने हॉस्पिटल में दाखिल रही, 6 ऑपरेशन हो गए, लेकिन वो बिल्कुल पैर से माजूर। बाप उनका 3 साल से माजूर पड़ा, ना हमारे घर में और कोई है। उसके 2 बच्चे अब हैं, एक ने मैट्रिक के पेपर दिए और एक जो है वो जिना कॉलेज में वो पढ़ रहा है। उसके बेवा के 2 बच्चे, दोनों बेटे। तो हमारा मसला है, अब हम जाहिर बात है हमारे पास है, वो ना उसका घर है ना बाहर। एक देवर था, वो उसको भी मार दिया था। भाई को 2 ही मेरे दामाद 2 ही भाई थे ये, और वो इस काबिल नहीं थी कि वो यहाँ आ सके। आप इनके साथ हैं कि अलग हैं? नहीं, हम साथ हैं सब। आप भी अलग है, हम सब अलग है, वो अलग। मेरी बच्ची माजूर है, चल नहीं सकती है बिल्कुल भी, पैर बिल्कुल बेकार हो गए। 3 साल हो गए वो पड़ी हुई घर में, ना चलना ना फिरना। और बाप है, बाप भी माजूर पड़े 3 साल से। इन लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत। अल्लाह ताला इन लोगों को सरसत रखे और अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारा साथ नहीं छोड़ा है। हमारे इलाके के बच्चे जितने भी हैं, कारकुन जो भी हैं, सब जाते हैं, सब खैर खबर रखते हैं। लेकिन बस ये हम इस मजबूरी में है कि हमारी बच्ची बिल्कुल पैर से बेकार हो गई है और उसके बच्चे ज़ेरे तालीम है दोनों। असलम शहीद की वालदा हूँ मैं, और 3 नंबर में रहती हूँ, डिगरोड कॉलोनी, रेता प्लाट। और सन 86 में वो खत्म हुआ है। सुबह जो हुई तो वो नहर मुंह था, सिर्फ उसने मुंह धोया था। लड़ाई झगड़े हो रहे थे, सब लड़के भाग, तो उसको गोलियां लग गई। उसकी आखिरी सुबह थी।
और 15 तारीख थी, पीर का रोज था और 19 साल का जवान और फौरन कर्फ्यू लग गया था। और फिर वो रात को उसका जनाजा आया था, इतने लोग थे, इतने सब थे, अल्ताफ हुसैन आए थे, वो मेरा हाथ पकड़ के कह रहे थे कि अम्मा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, अम्मा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, अम्मा असलम तो इस दुनिया में नहीं है, चलाई है। आज तक मैं कम वक्त जिंदा हूँ, कब्रों में चक्कर लगाती हूँ, हफ्ते में 3 बेटे मेरे खत्म हो गए, असलम तो मेरा शहीद हो गया और मैं कब्रों के चक्कर मार रही हूँ, हफ्ते में 2-3 दफा जाती हूँ और मैं नहीं मरती, मैं नहीं मरती। की बात होती है वो दिखाना और बताना चाहते हैं, लेकिन जो उनको सूट नहीं करती बात उसको वो बताना या दिखाना नहीं चाहते। खुदा की कसम, इतना खून अगर कहीं और बहता और इसका प्रॉपर इसकी प्रोपेगेशन होती और लोगों को दिखाया जाता तो पता नहीं कितने इनकलाब आ चुके होते और कितने मुल्क तबाह बर्बाद हो चुके होते और कितनी नस्लें इससे फायदा। अफसोस हमें सिर्फ ये होता है कि हमें इतनी कुर्बानी देने के बावजूद आज भी हमारी कुर्बानियों की रिकॉग्निशन नहीं है, आज भी हमारी कुर्बानियों को गलत सिमत में जो मुझे बताएं। हम बैठकर यहां कराची में ये देखते हैं कि यहां पर देखिए, सबसे पहली बात यह कि कराची के हर रहने वाला हमारा मोहसिन है, हमारा भाई है, चाहे वो पख्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, किसी रंग नजर से ताल्लुक रखने वाला इंसान अगर यहां पे रहता है वो हमारा भाई है। और ये मेरी बात नहीं है, ये अल्ताफ भाई की तरबियत है। आज हमारी पार्टी में तमाम जुबानों के बोलने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी तवज्जुह से मैं ये बताना चाहूं यहां पर कि अगर कोई यहां पर 2 पख्तून मर जाए और जब यहां पर जो वो भी हमारा ही नुकसान है, इसलिए इस कराची में मरता है पख्तून तो वो हमारा नुकसान है। हम अगर मारने वाले होते तो जब हमारे पास पावर होती तो हम लोगों को मार रहे होते। जब हमारे पास जब पावर थी 2002 से लेकर 2008 तक हमारा वजीर दाखिला था, हमारा नाजिम था, हमारा गवर्नर था, मिनिस्टर था। एक वाकया बता दें कि किसी की कोई टारगेट किलिंग हुई हो, लेकिन ये टारगेट किलिंग आज जब हमारे पास कुछ नहीं है, जब ही ये लोग क्यों मारे जा रहे हैं? वजह यह है कि आज 2 पख्तूनों को यहां मारकर, पंजाबियों को मारकर, बलोचों को मारकर जब आप लाशें भेजते हैं तो हम ये देखते हैं कि सरहद असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा में कराची में मारे जाने वाले पख्तूनों के लिए करारदाद मुजम्मत जो है वो पेश की जाती है और वहां पर डिबेट होती है। 2 बलोच मारे जाते हैं कराची में, बलोचिस्तान असेंबली में करारदाद मुजम्मत पेश होती है और वहां पर डिबेट होती है। 2 पंजाबी मारे जाते हैं, पंजाब असेंबली में करारदाद मुजम्मत पेश होती है और वहां पर असेंबली में डिबेट होती है। ये 15,500 अपने शोधा को लेकर इनके खून को कहां जाकर मैं करारदाद पेश करूं? कौन सी असेंबली में मैं करारदाद पेश करूं जाके, जहां पर मैं इन लोगों को लेकर जा सकूं? किसी पाकिस्तान के अदलिया ने, किसी पाकिस्तान की असेंबली में इतनी जुर्रत हुई आज तक कि इनमें से एक भी मासूम आदमी के लवाकिन से मिलकर जाकर अपनी असेंबली में बात करें और इनके लिए भी अफसोस करें? आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान में, आज तक नहीं हुआ। 2 लोग मारे जाते, डाकू मारे जाते, असेंबलियों में करारदादें पेश होती हैं। मैं किधर लेकर जाऊं इन 15,000 लोगों की करारदाद? हमारी करारदाद, हम इन लाशों को कहां लेकर जाएं? 2 लाशें कफन पैक करके आप इधर बेचते उधर बेच दो। ये एक डिजाइन पॉलिसी है, ये एक डिजाइन पॉलिसी है। पाकिस्तान में जागीरदार, वडेरा, सरमायादार, ये 2% तबके जिनकी अपनी निजी जेलें हैं, जिनकी अपनी जमीनें अपने हारियों को कैद करके रखते हैं, वो पाकिस्तान की आइंदा 7 नस्लों तक वो हुक्मरान रहना चाहते हैं। इसलिए वो हमारे लोगों को, इन मासूम लोगों को, क्या बात की हमारी बहन ने, 86 में तो एमक्यूएम नहीं थी, 2 साल की थी एमक्यूएम। सिर्फ एमक्यूएम को कोई नहीं जानता था 1986 में। फिर इन मासूम लोगों के घरों में कस्बा अलीगढ़ में हमला क्यों हुआ? 6 घंटे तक कोई पुलिस नहीं थी कराची की, कोई रेंजर्स नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी। एक घर में जाकर 350 लोगों को मारकर जिंदा जलाया गया। औरतें शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, जवान शामिल हैं। 6.5 घंटे तक किसी ने वहां पे कोई नजर नहीं उठाई। पक्का किला ऑपरेशन करते हैं, मेरी माए बहनें सर पे कुरान शरीफ लेकर निकलती हैं। क्यों निकलती हैं रोड पे? पक्का किला में के भाई 6 दिन से उनके घरों का पानी बंद कर रखा है, 6 दिन से उनकी गैस बंद कर रखी है, 6 दिनों से उनको घर से नहीं निकलने दे रहे। इसी पाकिस्तान की सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत के दौर में
88 में वो औरतें अपने बच्चों को लेकर कुरान शरीफ सर पे लेकर जब बाहर निकलती हैं, हजारों पुलिस वाले उनको गोलियों का निशाना बनाते। चलो मेरे साथ पक्का किला में तुम्हें दिखाता हूं मुबश्शिर लुकमान साहब, औरतों की बच्चों की खबरें पक्का किला में। किधर लेकर जाऊं मैं इन लोगों को, इन तमाम लोगों को। 30 दिसंबर 1986 को कादिर मक्सी ने पूरे सिंध भर में, हैदराबाद में चौकों पे, इलाकों में जाकर, मसाजिद के आगे जाकर, बाजारों में जाकर अंधाधुंध फायरिंग करते। सारे लोग दहशतगर्द आते, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते। 30 दिसंबर सानिया होता है, 350 इंसान मारा जाता है अस्पताल में। टखनों तक ब्लड था जहां जिस दिन ये वाकया पेश आए। कहां लेके जाऊं मैं सारी लाशें, किसको दिखाऊं? फिर आप जैसे लोग जब टीवी प्रोग्राम करते हो, जब दूसरे शहरों में बैठकर कमेंट्री करते हो, तो आप हमें ही जो है वो दहशतगर्द बता रहे होते हो, आप हमें ही दहशतगर्द लिख रहे होते हो, आप हमें ही जो है वो इस मुल्क का एजेंट बता रहे होते हो कि हम दुनिया के दूसरे मुल्क के एजेंट हैं। खुदा की कसम, किसी नस्ल में इतनी कुर्बानी हो जाए, अगर स्टेट की तरफ से इतना जुल्म हो जाए, वो लोग पता नहीं उस मुल्क को कहां डुबो देने की बात करना शुरू कर दें। आफरीन है कराची के इन शोधा की फैमिलीज के ऊपर और एमक्यूएम के ऊपर कि इतनी कुर्बानी देने के बावजूद भी आज अगर पाकिस्तान से कोई सबसे ज्यादा मुखलिस है तो वो इन्हीं के वालिदैन हैं, और यही लोग और यही पाक कराची के लोग और एमक्यूएम के लोग पाकिस्तान से मुखलिस हैं।